ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନରେ ସ୍ୱନିଦ୍ରା ଦେଲେ, ପୁଣି ଏହି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଏ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେଜ ସାଲୁଟ ଜଣାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆରାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ସିଏନ୍ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଆରାଧନା କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 104 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବି, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଆଉ ଆରାଧନା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନିତା ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସିଏନ୍ ପ୍ରତିମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଜୁବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର, ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ମାଗିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଯାଚି ମତେ ଦିଅନ୍ତି, କହିବା ଆଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ମାଗିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଯାଚି ମତେ ଦିଅନ୍ତି, କହିବା ଆଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି, ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି, ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସେ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି, ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି, ହଜିଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଦୁନିଆରେ, ହଜିଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଦୁନିଆରେ, ଖୋଜି ମତେ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳକ ସେ
এই জীবনର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର, ପ୍ରତିପାଳକ ସେ এই জীবনର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଆସୁ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ, ଅବାଗେରୁ ଜରା କ୍ଲେଶ, ବିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଏ ଜୀବନ, ଆସୁ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ, ଅବାଗେରୁ ଜରା କ୍ଲେଶ, ବିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ
प्रभुଙ୍କର आराधना करुथिबा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जो मैं जख्मी हुआ, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जब मैं जो जख्मी हुआ, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, बाहों में तूने मुझे ले लिया। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ए समस्त सुजोग लागे प्रभु तुम आज मते प्रातः समय व्यवहार कल तेल मिनिस्ट्री प्रभु तुम पवित्र पवित्र महानाम धन्यवाद दूची प्रभु। पुणी तुमरे उपस्थित समस्त को तुम आशीर्वाद कर दया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आज्ञा आउ धन्यवाद आमर पर आज्ञा को से समय सुजोग प्रदान कर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद भौणी। आपण अति अर्थपूर्ण गीत गान करी प्रभुଙ୍କର महिमा करिसंती। सेति पय आपनको मु प्रभु श्री कृष्णଙ୍କ नामରେ धन्यवाद जणाए। वर्तमान हम माने इनवाइट करेवा एवं भौणीଙ୍କ निमंते एक करताली सह तांको धन्यवाद देवा। वर्तमान वाक्यर समय आम माने अति गुरुत्वपूर्ण समय उपस्थित होइछे। आम मानक मध्यरे बालक जुगल किशोर प्रधान सार उपस्थित अछंती। प्रेज द लॉर्ड सार। आज्ञा को मु एक वाक्य दे स्वागत जणाइबा को चाहे।
ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 640 पर्व तार 14 ଆଉ 15 पद गीत संहिता 640 पर्व 14 ଆଉ 15 पद ମୁଁ ପାଠ करे से तुम्भ सीमा ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗହମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜିକାର ପାଳକ ଯୁଗର କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। धन्यवाद आज्ञा मो आवाज सुनी पारुछंती बोधे ओके थैंक यू सो मच प्रभु गौरव हो आज सुंदर प्रातः काल से आम मान देखई तेणु प्रभु को मोर हृदय कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करे ता सहित मध्य आज ए प्रातः समय रे रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आयोजित जूम मीटिंग रे उपस्थित थिबा प्रत्येक को प्रभु को दास दासी मान को मोर आंतरिक नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त को आओ मो बहुत खुशी आज जे मो योग्य को आज आपण मान सम्मुख में छिड़ा हेबाई आपण मैंने मत अपेक्षा कर विशेषकर मो रियल मिनिस्ट्री होस्ट महाशय को मध्य मोर हृदय कृतज्ञता जनाए से आज मत आपण मान सम्मुख में किसी वार्ता देवाई से मनोनीत कले से विशेष धन्यवादी अटे जूम मीटिंग रे वाक्य कहवा निकट अतीत जड़े मत कहते जूम मीटिंग रे बहुत तुम जॉइन कर शुणुची कि लाभ कौन तुमको लाभ मिलुची जूम मीटिंग खाली गोटे प्रहसन जूम मीटिंग रे जॉइन करबा द्वारा खाली टाइम पास समय नष्ट खाली हुए से कौन लाभ मिले विभिन्न कथा जेहेतु से बड़ लोक तांको उत्तर मु देई पार नथिली किंतु जूम सहभागिता रे जो माने एकाठी होंती निश्चित भाव से मान जानी छंती यार लाभ कौन आमे मंडली रे चर्च रे एकाठी हो प्रार्थना करू उपासना करू कौन पाई ख्रीष्टीय सहभागिता निमंते गोटे मंडली रो विश्वासी विश्वासी माने सकाळ पाइले आमे परस्पर मुह देखा देखी हो से मानक सहित मध्य आमे चर्च रे एकाठी हेबाकू पड़े जेहेतु सहभागिता निमंते किंतु जूम गोटे एमती यांत्रिक कौशल प्रभु मान देइछंती के चेन्नई रे के हैदराबाद रे के इलाहाबाद रे के दिल्ली रे के ओडिशा रे आउ के पश्चिम ओडिशा रे के उत्तर ओडिशा रे विभिन्न प्रांत आम एकाठी ही परस्पर देखा देखी है जो सहभागिता मध्य आसुचु प्रभु का नाम गौरव हो यही सहभागिता को जो उपलब्धि कर पारिछि निश्चित भाव में से ही जानी एथिर लाभ कौन तो आम डिस्करेज हेबा नहीं अवश्य मु प्रतिदिन जॉइन कर पारे नहीं यही सहभागिता रे मु सेति दुखित किंतु जूम माध्यम जो सहभागिता जो आनंद आउ जो प्रेरणा मान को मिले आमे जानू प्रभु जानती तबे जहाँ भी हो आज आमने वाक्य मध्य को जीवा मते वक्ता बोली संबोधन करा जाउची किंतु आज मु देखि पारुची रियल मिनिस्ट्री रे आम एसओबीसी रो स्टूडेंट मानकर वर्तमान कार्यक्रम चलची हमर सीएन प्रतिमा भणी बहुत सुंदर भाव रे
गीत गाइले से मध्य आमर जने ट्रेनिंग मीट ता सहित मध्य नयन खोसला आज्ञा से वर्तमान परिचालना दायित्व रे अछंती और से मध्य बहुत सुंदर भाव परिचालना करे आछंती बहुत सुंदर भाव मते स्वागत मध्य कले एते मध्य मो बाहरी खुशी जे हमें कोई किसी से कम नहीं है बहुत खुशी लगे जेतु प्रभु मान को एमती भाव रे हमको आह्वान करछंती मनोनीत करछंती एकाठी करछंती निश्चित भाव रे प्रभुंकर एक महान योजना आमनकर जीवन पय रहिछि ओके वर्तमान मो तो वाक्य वीर न है जूम रे वाक्य कहला बेले मते लागे एटा मोर इंटरव्यू करा होची ना कंपटीशन रे भाग नै छी मु बुझी पारे नाही कारण मो आपण मानू कौन परामर्श देवी आपण मानकर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते मु कौन एमती बोध दे पारबी कौन शिक्षा दे पारबी से भलिया लोक मो सामने रे बसी नांती जेते लोक मु देखि पारुची समस्ते वाक्य वीर आ समस्ते प्रभु को द्वारा आशीर्वाद तो तेबे जहाँ भी हो आमने परस्पर मिलीमिशी आलोचना करने को जीवा मो वक्ता नुहे आपण माने श्रोता बोली भावंतु नाही आमने समस्ते एक तेबे आज चिंता निमंते मु गोटे अंश नहीं पवित्र बाइबल रु फिलिपियो मंडली को पाउल पत्र तार 2 अध्याय 4 पद ये पढ़ी देबे ठीक है हो प्रति जन केवल अपना विषय रे मनोयोगी न होई अन्यर विषय रे मनोयोगी हो बहुत सुंदर विषय आम तो बाइबल प्रतिदिन पढ़ू बहुत सुंदर सुंदर बाइबल लिखा जाए बहुत सुंदर सुंदर पद गुड़ाक जोड़ा मनकर व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे आत्मिक जीवन रे बहुत उपकार जनक तबे आज मध्य ए अंशटी जो हम पाठ कले एथिरे लिखा जाए प्रति जन केवल अपना विषय रे मनोयोगी न होई अन्यर विषय रे मनोयोगी हो एटे के सुनि देला बेले को टिके मन टिके कष्ट कष्ट लागे काहे कि प्रेरित पाउल फिलिपियो मंडली निकट को ए जो सुंदर कथा कहिले एटा होची आमनकर प्रैक्टिकल जीवनर कथा तेबे प्रेरित पाउल फिलिपियो मंडली को ए पत्र लिखिछंती फिलिपियो एक मंडली थिला प्रेरित पाउल जते बेले कारागार रे थिले सेही समय रे फिलिपियो मंडली को ए पत्र से लिखिथिले फिलिपी मंडली विषय जदि आमे जानिबा को जिबा फिलिपियो नगर माकिदोनिया एक प्रधान नगर थिला महावीर अलेक्जेंडर को पिता द्वितीय फिलिपंक नाम रे फिलिप नगर नामकरण करा जायथिला पाउल जेतले रोम सम्राट द्वारा कारारुद्ध थिले आउ ता पूर्वरु से ए मंडली स्थापन करथिले मंडली स्थापन करदेला परे मंडली को से एमती अनाथ भाव रे छाड़ी दे नथिले जेतु प्रति समय रे से फिलिप मंडली को जाई पार नहांती वर्तमान से कारारुद्ध अवस्था रे तथापि से निजर दायित्व निर्वाह करी मंडलीर विश्वासी मानकर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते चिंता करी प्रार्थना करी से एही पत्र लिखुछंती कारागार केते बड़ विषय निजर दायित्व निर्वाह करिबा पाउलंक जीवन रे एक श्रेष्ठ परिचय थिला ता मानक निमंते महान शिक्षणीय विषय अटे आउ तो प्रेरित पाउल से फिलिप निकट को पत्र लिखे फिलिप मंडली निकट को कारण से मंडलीर विश्वास मानकर अवस्था एवं परिस्थिति विषय से जानी थिले हुए तो यही परामर्श से फिलिप मंडली को देवा इच्छा कले कारण
प्रति जन केवल आपण आपण विषय मनोयोगी न अन्यर विषय मनोयोगी हो कथा कहबारे बहुत बड़ तात्पर्यता रही। जो माने आपण विषय मनोयोगी होती सब बेले अन्यर विषय मनोयोगी होती नहीं से मानकु साधारण भाव में आमे कौन कहू स्वार्थपर बोली कहू। जो माने निज विषय ही चिंता करथिबे अन्य विषय चिंता करती नहीं से मानकु स्वार्थपर बोली कहा जाए। से मानकु कपटी बोली मध्य कहा जाए। से मानकु कुटिल मना बोली मध्य कहा जाए। तो ए भली लोक माने एपरि व्यक्ति विशेष समाज रे देखिबा पाए असंख्य। समाज रे आजिकाली आमनकर ख्रीष्टीय मंडली रे मध्य ए भली लोक मानकर अभाव नाही। मंडली कौन कहबा समाज कौन कहबा आमनकर परिवार मध्य रे मध्य निज परिवार मध्य रे मध्य जदि आमनकर दुईटा चारटा छुआ अछि सेथि मध्यरु जणे दी जण निश्चित भाव रे एई स्वार्थपर रोगर शिकार होइथिबे। तो जो माने केवल निज कथा भावंती अन्य कथा भावंती ना अन्य पाई मनोयोगी होती ना से मानकु स्वार्थपर कपटी कुटिल मना इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार भाषा से मानकु संबोधन करा जाए। किंतु तार विपरीत अर्थ रे जदि आमे देखिबा तार विपरीत अर्थ जो माने दयालु हृदयवान से माने मध्य अछंती आमनक समाज रे आमनक परिवार रे। तो आज मु बाइबल रो 4 जनक विषय आपण मानक कहया पाई जिबी। 4 जन दयालु हृदयवान मनुष्य थिले और शह शह लोक तो अछंती किंतु समय सापेक्षता दृष्टि आम केवल 4 जनक विषय रे आम चिंता करबा। आउ से 4 जनक मध्यरु जने पुरुष जने महिला जने बालक आउ जने बालिका। बाइबल रो ए 4 जन को ए 4 चरित्र को आम आज नबा आलोचना निमंते आउ से माने कि भली भाव रे आम मान को आदर्शता देखै छंती। प्रथम आम देखिबा को जिबा से महान हृदयवान पुरुषों विषय रे आउ से होसंती किए तार लुक 7 अध्याय 2 पद यदि सीएन प्रतिमा भणी टिके पढ़ी साहाय्य करि परिबे। से समय जणे सेनापतिंकर दास पीड़ित होई मृत प्राय होइथिला। से ताहांकर प्रिय पात्र थिला। से यीशुଙ୍କ संबंधରେ संवाद पाई से जेपरि आसे तांक दासर प्राण रक्षा करती एथि निमंते ताहांक निकट जिहुदा मानकर केतेक प्राचीनଙ୍କୁ पठाई ताहांको अनुरोध कले। बहुत धन्यवाद मुनि। ए स्थान रे हम देखि परछु से जने महान पुरुषंकर कथा। से होसंती जने सत सेनापति रोम साम्राज्य रे कार्यरत जने सत सेनापति। जेतु से जिहुदी नथिले सेत पई बाइबल रे जो माने जिहुदी नथिले से मानको विजातीय बोली संबोधित करा जाए। तो सत सेनापति जने उच्च पदस्थ कर्मचारी थिले। से विजातीय थिले से यीशु को जानि नथिले ईश्वर को भय कर नथिले किंतु तांकर हृदय रे जो दयालु एवं सरलता थिला से जन उच्च पदस्थ कर्मचारी हेले मध्य से तांकर जने नीच पदस्थ कर्मचारी प्रति किपरि मनोयोगी थिले। तांकर जने दास से असुस्थ अछंती मृत प्राय केते बेले मरि जिवे सेथिपाई से भारी चिंतित व्यक्ति व्यस्त निजर जने सहकर्मी निमंते। आजिका जुगरे जदि आमने देखू जने उच्च आसन पाईगला परे अधस्तन कर्मचारी मानक पाई सेमानकर व्यवहार किपरि थाए। कुकुर भलिया देखंती आसन रे बसीगला परे निचस्थ कर्मचारी मानक से माने सम्मान दियंती नाई आदर करंती नाई। किंतु सत सेनापति जीवन रो माने महान शिक्षा में ग्रहण करिबा जे से जने
उच्च पदस्थ कर्मचारी हेले मध्य निजर दासंक प्रति केते मनोयोगी थिले से आउ तांकर सुस्थता केमती हेबो होय तो से बहुत डॉक्टर को देखैथिबे वैद्य को देखैथिबे जेतेबेले से सुस्थता पाई पार नांती से चिंता करूछंती जीसु से तो सर्वशक्तिमान से अछंती वर्तमान से पाखरे अछंती तांको पाखको जदी तांको निया जीव निश्चित भाव रे जीसु सुस्थता कर देबे ए विश्वास मध्ये तांको भीतर रही छी आजी जो माने उच्च पदरे स्थानित अछंती आ मानकर समाज रे हो कि ख्रीष्टीय समाज रे हो से मानकर एडे बड़ विश्वास हमें देखि पार न थाउ तेणु से कौन कले यहूदी मानकर केते प्राचीन मानक डाकिले जीशुଙ୍କ निकट खबर पठाउछंती आ से प्राचीन माने मध्य एभଳି भाବରେ जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ से सत सेनापतिଙ୍କର प्रशंसा गान करूछंती जे ए जणे महान व्यक्ति तांका प्रति आपण दया प्रकाश करंतो सेथि पाए से योग्य भी अटंती केते बड़ सर्टिफिकेट यहूदी मानकर प्राचीन माने कहउछंती से आम मानकर समाज को प्रेम करती आम मान निमंते समाज गृह से निर्माण कर देछंती तांकर गुणगान करुछंती जने विजातीय उच्च पदस्थ अधिकारी हेले मध्य तांको जीवन रे जो दयालु जो महानता रही से माने ताको प्रकाश करने पई पछुनांती आ से एभली जने हृदयवान व्यक्ति थिले से निज कथा भाबिले नाय हुए तो मो तो एडे बड़ कर्मचारी से मो दास से मले केते बंचिले केते आउ एमती केते दास आसी जिवे केते कर्मचारी मते मिल जिवे आजिका दिन रे ख्रीष्टीय समाज रो बड़ बड़ नेता माने मध्य ए चिंताधारा पोषण करंती नाही से मानकर मध्य मध्य हंग भाव ए स्वार्थपरता रही हाँ हाँ से स्टाफ तो से गले केते से रहले केते से मले मध्य आ गोटे स्टाफ मामू मिल जाए एटा होची प्रैक्टिकल कथा हो तो जो माने अनुभव करथिबे से माने निश्चित भाव जानि पाउथिबे आजिका दिन रे ए भली चालीछि किंतु सत सेनापति जीवन रो ए महानता आदर्शता आमे निश्चित भाव अनुकरण करबा आवश्यक तापर आमे देखिबा जने महिषी महिला विषय रे यह थिला मनकर जने पुरुष व्यक्ति आ जने महिला विषय हम देखिबा से महिषी महिला जनक किए थिले द्वितीय राजावली तार 4 अध्याय हम बाहर करबा 8 पद अनंतर दिनकर इलिशा सुनेम को गले सेठारे एक धनवती स्त्री थिला आ से इलिशा को अन्न भोजन निमंते बळाइला एथि तार इलिशा जेते थर से पथ दे गले सेते थर अन्न भोजन निमंते सेठा को गले प्रेज द लॉर्ड एठी जणे महिषी महिला को हमें देखि पारचु आ से महिला विषय रे बाइबल लिखा जाए से धनवती स्त्री थिले आ से सुनेम नगर रो धनवती स्त्री प्रतिदिन इलिशा से पथ दे जाउछंती जीवाशय करछंती से सब बेले देखे जे प्रभुंकर महान दास सब बेले जीवाशय करंती आउ तांको रहिबा पाए कि टिके आश्रय नेबा पाए स्थान नाही सेत पाए से चिंता कले आउ तांको हृदय रे से दया भाव जागृत हैला सेति पाए से तांको निज स्वामी को से अनुरोध करछंती वे तो से जेतेबेले चिंता कले निजे भी निजे काम करि पारथांते किंतु तांको जीवन रे अनेक भल विषय माने देखि पारुछु से जने धनवती स्त्री हेले मध्य ईश्वर को लोकन को चिन्हबार शक्ति तांको पाखरे थिला ईश्वर लोकन को से जानि पारले चिन्हि पारले आउ द्वितीय विषय रे हमें देखुछु से जने पतिव्रता नारी मध्य थिले कारण से स्वामी को से कथा कहबा पई चाहउछंती स्वामी को बिना परमिशन रे कौन से डिसीजन नेबा पई से चाहुनांती होय तो तांको हृदय रे से चिंताधारा अछि से मन रे तांको प्रति दया भाव जागृत हैला किंतु से निजे निजे से काम करिया पई इच्छा कले नाय
ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟ ପକେଇଦେବା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ତ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ତ ତା ଧନରେ ऐश କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଗଲେ କେତେ କିଏ ଆସିଲେ କେତେ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିଜର ଧନ ଉପରେ କେତେ ଗର୍ବ, ନିଜର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନିଜର ଶାଢ଼ୀ, ନିଜର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗର୍ବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନମସ୍କାର କଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହା କରିଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, କେହି ମଧ୍ୟ ମାନେ ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧନରେ ଗର୍ବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ, ଆଦର୍ଶତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ କଣ କଲେ? ଇଲିଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢିଯିବା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଲିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ମୋର କହିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧନ ଉପରେ ଗର୍ବ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କିପରି ନିଜର ସେବା ବା ମନୋଯୋଗିତା ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟଟେ। ତାମାନେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବାଳକ କିଏ ଥିଲେ? ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ଏଭଳି ବାଳକ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋହନ 6:8 ପଦ। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି। ଏ ପଦ ପଢୁ ପଢୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଏଟା କୋଉ କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ଭୋକିଲା ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ପଇସା? କୋଉ ବଜାରରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 100, 200, 1000 ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 200, 300, 500 ଲୋକର ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ବଜେଟ କରୁ କରୁ ଆମେ ଥକି ପଡୁ, କୋଉଟା ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟେ ଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 500, 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ମିଶି କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେଲୁର ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଥାନ ଲେଖାଯାଏ 5000 ପୁରୁଷ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ବାଇବେଲ ବିଶାରଦ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି 5000 ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲା। ଆଉ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଳକ ପାଖରେ 5ଟି ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ଅଛି। ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବରେ, এটা ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ।
15-20 हजार लोक अछंती आ 5टा रुटी 2टा माछ अछि बोली से यीशु को रिपोर्ट करछंती जने शिष्य सेथिरा हमें देखि पारछु होय तो से शिष्यंकर दृढ़ विश्वास मध्य सेथिरे निहित अछि जे से हुए तो भाभी थिले यीशु सर्वशक्तिमान से आश्चर्य कर्म करंती हुए तो एटा मध्य यीशु पाई किछि बड़ विषय हे न पारे निश्चित भाव से विश्वास सहित शिशु निकट गले कहले गोटे बालक पाखे केवल 5टी रुटी 2टी माछ अच्छी हो पार कि यीशु कहले आण तमें एबे कौन कौन लोक मान बसई दियो जेते से बालक पाखक जाई से रुटी एवं माछ मगा जाउछि से बालक कौन कले मो माँ पठेची मते भोक हेले खाइबा पाई अन्य को देवा पाई देई नाहंती कारण आजिका पिला माननकु जदि आपण से कुरकुरे खाउथिबे जाईके टिके हाथ बढेबे हाथ चापी देबे नहीं 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 देबे नहीं दियंती नहीं पिला माने पिलांक भितरे मध्य लोभ अछि पिला माने खाइबा जिंस को प्राय तो दियंती नहीं आ बाकी अन्य जिंस मागिले के जाने देई देबे आजिकल तो मोबाइल दियंती नहीं पिला माने मोबाइल पाई गले माने आ से माने काहको देबा इच्छा करंती तबे से बालकों विषय में देखि पारछु स्थान रे जे बालकटी से निर्लोभी थिला हुए तो माँ बापा द्वारा से संस्कार से पाई थिला जा द्वारा से अकुंठित भाव से तार खाद्य को से अन्य को दे पारिथिला से जदि चाहि थांता नाही एटा मोर खाद्य मु खाइबी मते भोक लागले मु केमती करबी मु काहा को मागी जीबी जदि भाबी थांता ताले होय तो से खाद्य से दे न थांता किंतु ता माँ बापा जो संस्कार बढ़ई सेटा हूँ अत्यंत प्रशंसनीय से आम ख्रीष्टीय समाज शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक जे आम पिला मानक आमने कौ संस्कार आम बढ़ाऊ आजिका पिला माने बापा माँ कथा मानती नाई बड़ मान कथा मानती नाई सबु पिला से भले नुहंती किछि किछि पिला तो से भलिया ख्रीष्टीय परिवार बापा मान को आम अनुरोध करवा जे पिला मान को एभली संस्कार दे बढ़ंतु जेपरि से माने एक ख्रीष्टीय परिवार पिला भाव परिचय पाइबे ए स्थान रे मध्य से बालक विषय आम देखिलु से निज विषय चिंता कले नाई अन्य पाई मध्य से मनोयोगी हेले निजर खाद्य दे देवा द्वारा 15-20 हजार लोक परितृप्त हेबे आ से निजे मध्य परितृप्त हेले खाद्य दे देवा द्वारा से भोकिला रहिले नाई अन्य माने परितृप्त हेले आ से मध्य परितृप्त हेले एड़ा तांकर महानता को बुझाए सेथिपाई आज पर्यंत से बालकों को विभिन्न मंडल विभिन्न विश्वास माने स्मरण कर आसुचु आमे चतुर्थ आम देखा गोटे साहसी बालिका विषय से साहसी बालिका किए थिला आ से किपरि से निज विषय मनोयोगी न होई अन्य विषय मनोयोगी हो पारथिले जाके आम द्वितीय राजावली 5 अध्याय आम देखा पारिबा 5:3 2 सॉरी अराम्य माने दल दल होई बाहर इस्राएल देश एक क्षुद्र बालिका को बंदी कर आनी थिले आ से नामान भार्जार सेवा करुथिला ए पद पढ़ु पढ़ु मध्य आपण माने बुझी पारिथिबे कहा विषय लिखा है अराम्य राजार सेनापति नामान को घरे जड़े बालिका बंदी अवस्था अच्छी इस्राएल सहित युद्ध करी से माने इस्राएल अनेक लोक मानू से माने बंदी कर नहीं जाइछन्ते निज राज्य को आ से बंदी मान भितर जड़े बालिका मध्य अच्छी बंदी भाव से बालिका किंतु कोठी अच्छी ना सेनापति घरे से सेनापति भार्जार दासी भाव से रही से जड़े निरीह बालिका अन्य देशरू से बंदित्व अवस्था आसी ता बापा माँ ठिकना नहीं तार लोक मानकर देखा चाह नहीं केते दुखरे थिला केते कष्टरे थिला निश्चित भाव छोट बालिका से निज परिवार को मने पकईकरी केते कांदी थिबो केते मने पकोथिबो से अवस्था रे मध्य
से निजर ईश्वर को से भूली नाई, निजर बंधु वर्ग को से भूली नाई, आउ से एक आश्चर्य कर्म से साधन करछि। कोई तो आश्चर्य कर्म कहवा को पड़िबो हमको, जेतु से जो कर्म करछि गोटे बालिका ता निश्चित भाव में आम प्रशंसनीय अटे। तेबे से कौन कला, नामान जड़े कुष्ठी लोक थिले, तो से कुष्ठी रोग मुक्त होगापाई से बहुत चेष्टा करछंती, बहुत मेडिसिन करछंती, किंतु से ठीक है पाउनांती। से एक सुंदर साक्ष्य से दौछंती जे तांको दासी तांको मालिक को कहउछंती बा मालिकाणी को कहउछंती जे इस्राएल देश रे जने भविष्यत वक्ता अछंती, आम मालिक जदि तांको पाखକୁ जिबे और से जदि प्रार्थना करबे ताहले आम प्रभु सुस्थता पाई जिबे। आश्चर्य विषय, छोट बालिका किंतु केते बड़ विश्वास, केते बड़ साहस आम देखि पारछो। निजर साहसिकता को से प्रकाश कले एवं जने मालिकाणी आगरे से निर्भीक भाव रे एक चमत्कार विषय से प्रकाश करछंती। किंतु आश्चर्य कथा, तांकर से मालिकाणी मध्य ए छोट बालिका कथा को से उपेक्षा कले नाई, से अणदेखा कले नाई। हे तो छोट बालिकार कथार मत किसी दम अच्छी, से भाविले नाई जदि कहूची पिलाटा टिके निश्चित भाव में आम टिके काम लगेगा। तापर से नामान को भी कहले, नामान जने सेनापति, केड़े बड़ बड़ राज्य को से परास्त करी, केड़े बड़ राजा मान को से परास्त करके आसुछंती, से भलिया से सेनापति, वीरत्वर सेनापति हो तो तांको सामना रे जने कथा कहवाटा मध्य बहुत कष्टकर विषय। भययोग्य लोक से ए भली एक महान लोकन को छोट बालिका कि भली भाव रे एक परामर्श दउछंती, आ छोट बालिकार परामर्श से माने किपर ग्रहण करछंती, सेटा मध्य आश्चर्य विषय, भाविबार विषय, चिंतार विषय सेटा हमन पाए। कारण आजिकाली आम छोट पिला जदि किछि हमन कहि दे, ए तू छोट पिला कि जानिनु, तो हम चुप कर दउछु। किंतु छोट पिला हृदय रे, छोट पिला मन रे मध्य अनेक बड़ बड़ विषय रहिछि, तांको हमें निश्चित भाव सम्मान देवा आवश्यक। आज समाज रे छोट पिला मान को विशेष तो सम्मान दिया जाए नहीं, किंतु ए स्थान रे जने विजातीय सेनापति से केते बड़ पदरे अलंकृत अछंती, किंतु छोट पिलार कथा को से भ्रुक्षेप कले नाही, उपेक्षा कले नाही। आउ से छोट पिलार कथा मानी से इस्राएल देश गले, आ जहा घटिला आपण माने जानंती। तेबे हमने देखिलु जने पुरुषों विषय, महिला विषय, जने बालिका एवं आ जने बालकों विषय ए माने कौन करछन्ते ना निज विषय मनोयोगी न होई अन्यर विषय मनोयोगी हेबा द्वारा सेमानक जीवन रे अनेक आशीर्वाद आसीछि। आउ आश्चर्यर विषय ए जो चारि जनक विषय रे माने आज देखिलु, चिंता कलु, ए चारि जनक नाम बाइबल ले लिखा जाय नाही। चारि जनक नाम ही बाइबल लिखा जाय नाही, किंतु नाम नथिले मध्य जेते दिन पर्यंत बाइबल अच्छी पृथ्वी रे सेते दिन पर्यंत ए मानकर विषय रे पढ़ा जिवो, ए मानको स्मरण करा जाउछि। कारण से मानकर कार्य ही से भली महत् कार्य थिला, आश्चर्यजनक कार्य थिला। काहे कि ना पाउलंकर भाषा रे जो माने निज प्रति मनोयोगी न अन्य प्रति मनोयोगी होंती, से माने सर्वदा स्मरणीय अटंती, सर्वदा सम्मानीय अटंती, सर्वदा प्रशंसनीय अटंती। आमने आज पालंकर ए उक्ति को आमने केते दूर आमे पालन करूछु। से पावल विभिन्न मंडली को से यही परामर्श देवा पई बोली नांती। से करंथी मंडली को मध्य लिखिले तार 10:24 रे, केही निजर स्वार्थ चेष्टा न करू, मात्र प्रत्येक जन अन्यर मंगल चेष्टा करू। करंथी मंडली को मध्य से कथा लिखिले, केवल फिलिप मंडली को लिखि नांती जे अन्यर मंगल चेष्टा करबा मानकर आवश्यक। जने क्रिश्चियन भाव रे आज अण ख्रीष्टियान लोक मान मध्य ए भली कार्यक्रम हम देखा पारू। आ से रोमी मंडली को मध्य लिखिले 15:1 रे, विश्वास रे बलवान जे आम्भे माने दुर्बल मानकर दुर्बलता सहिबा मानकर उचित। आमने विश्वास रे बलवान बोले आमे कहि होछु ना, मु जने ख्रीष्टियान, मु जने विश्वासी,
ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ବୋଲି ଆମେ କହି ହଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସହ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ନ ଦେଖି ନିଜର ସୁଖ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ 12:15 ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ସହି ପାରିନଥାଉ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ, ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ, ଆ ଘରେ କେବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସୁ, ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଭଲ ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଥାଉ, ତା ପରିବାର ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ପଡିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ତେବେ ପାଉଲ କାରାଗାର ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, କେତେ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଯେପରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଚିନ୍ତାରେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ହେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଅଟେ ଏବଂ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ କିପରି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗ ହେବା, ଏ 4ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ପୁଣି ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା, ସେହିପରି ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।